Hey everyone, welcome back to our channel. Today we are going to talk about water harvesting and soil water conservation practices. इसका जो self assessment test का PDF है already we have uploaded in our Telegram group. You can join there and you will find there the PDF of this test and you can test yourself through that PDF and you can come back to watch the answer keys and explanation of this test. So in this explanation session we will learn a lot of things. Before going to take the explanation session, I want to tell you if you are new to this channel, then we are uploading different conceptual lectures, different quizzes on our YouTube channel. You can join there and you can also join our Telegram group. We are taking your queries there and we are giving different updates on our lectures. Without wasting any time, let's begin. In this session, we will discuss about water harvesting. So why we need to do water harvesting? हमको water harvesting का जरूरत कहाँ पे पड़ता है? जहाँ पे रेनफॉल जो है लिमिटेड टू पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड, सो दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टोर दैट वाटर एंड वी कैन यूज इट एज लाइफ सेविंग इरिगेशन whenever it is required by the crop, and we can also use it for drinking purpose. We have scanty of water for our drinking purpose or for our home consumption. So हम जहाँ पे जनरली कहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग फ्रूटफुल होता है, जैसे कि एरिड एरिया है, जैसे कि राजस्थान हो गया या फिर तमिलनाडु का कुछ पार्ट्स है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम रहता है, स्कैंटी रहता है, वहाँ पे हमारा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं हम. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा फार्म पॉन्ड हो गया, दैट इज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर वाटर हार्वेस्टिंग. Then we have rainwater harvesting on our rooftop rainwater harvesting. Then there are broadly classified into in situ water harvesting, ex situ water harvesting. In situ water harvesting that are those which are storing water in field itself. There are different structures we are making in field that prevent runoff of water and that store that water in the root zone depth. Again, ex situ water harvesting like our farm ponds, these are ex situ water harvesting structures. Tanks, farm ponds, these are ex situ water harvesting structure. So in this particular session we will discuss some of the important MCQs from water harvesting and soil water conservation. So yeah, watch till the end to grab some concepts. So let's begin. The first question is, in situ moisture conservation practice doesn't focus on, मतलब इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन हम जो करते हैं, मॉइस्चर कंजर्वेशन जनरली दो टाइप का होता है, एक इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन होता है एंड एक्स सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन होता है. इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन में क्या होता है, हम फील्ड में इटसेल्फ हम मॉइस्चर कंजर्व करने की कोशिश करते हैं. देन एक्स सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन में हम लोग आउट ऑफ द फील्ड मॉइस्चर कंजर्व करते हैं, राइट. इन दैट केस वेयर वी आर ट्राइंग टू कंजर्व द मॉइस्चर इन फील्ड इटसेल्फ, दैट इज नोन एज इन सिटू. इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन का 3 प्रिंसिपल्स हैं. वन इज रिडक्शन ऑफ रन ऑफ, देन सेकेंड वन इज इंक्रीज इन इन्फिल्ट्रेशन. रेनफॉल जो भी होता है उसको हम रन ऑफ से प्रिवेंट करते हैं, देन उसको हम इन्फिल्ट्रेट करने के लिए जो भी मैनेजमेंट चाहिए होता है उसको सुइटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. देन इंक्रीज इन इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम. इसके वजह से क्या होगा, अगर हम उसी फील्ड में अगर इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम पर इंक्रीज करेंगे देन रन ऑफ ऑब्वियसली कम हो जाएगा. तो हमारा जो मॉइस्चर है, जो भी रेनफॉल से हम रिसीव कर रहे हैं मॉइस्चर, वो फील्ड में ही रहेगा, वो इन्फिल्ट्रेट होके उसी फील्ड में जो सॉयल है वहाँ पे वो स्टोर होगा. सो दिस 3 आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इन सिटू सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन. ओके, रिडक्शन ऑफ रन ऑफ रिडक्शन से हम उसको प्रिवेंट करेंगे. देन इंक्रीज इन इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेनफॉल, देन इंक्रीज इन इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम. सो द राइट आंसर हियर विल बी रिडक्शन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेनफॉल. अगर इन्फिल्ट्रेशन रिड्यूस हो रहा है then runoff will be higher. So our main practice in situ moisture conservation should be reduction of runoff, increase in infiltration of rainfall, increase in infiltration opportunity time. Next question is, broad bed and furrow method recommended by ICRISAT. for broad bed and furrow method ने किसने recommend किए थे, ICRISAT ने. ओके, ब्रॉड बेड एंड फोरो जो है उसमें क्या किया जाता है, नाम को पहले ब्रेक करो. ब्रॉड बेड यानी एक बेड रहेगा जो कि ब्रॉड रहेगा, उसका स्पेसिंग ज्यादा रहेगा. देन एक फोरो रहेगा. ओके, फोरो यानी एक डिप्रेशन रहेगा, देन अगेन एक बेड रहेगा. सो इस टाइप का रहता है ब्रॉड बेड एंड फोरो. सो इसमें जो बेड रहता है इसका जो स्पेसिंग है यानी बेड का जो विड्थ है दैट डिपेंड्स ऑन द व्हाट क्रॉप वी आर टेकिंग. ओके, कौन सी क्रॉप हम ले रहे हैं उसी बेड में, उसके ऊपर उसका जो स्पेसिंग डिपेंड करता है. सो
जनरली जो बेड रहता है वो 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर तक रहता है. सो दिस process, this broad bed and furrow method, it is suitable for black soil. Okay, this is recommended for black soil. ये ब्लैक सॉइल में रिकमेंड किया जाता है एंड जहां पे रेनफॉल हाई रहता है, रेनफॉल जहां पे हाई रहता है वहां पे रिकमेंडेड है. द ग्रेडियंट ऑफ फोरो ग्रेडियंट जनरली 0.6% रहता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following practice is not recommended for black soil? इनमें से कौन सी प्रैक्टिस that is not recommended for black soil? Options are BBF, dead furrow, compartmental bunding, all of the above. So इनमें से जो dead furrow है, this is not recommended for black soil, this is recommended for light soil. Okay. broad bed furrow हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये इक्रिशाट ने इसको प्रपोज किए थे and this is practiced in black soil where there is high rainfall. Then compartmental bonding, it is also practiced in black soil. Dead furrow क्या होता है? These are the furrows of 20 centimeter depth in every alternate 6 to 8 rows of crops and practiced mostly in red soil or light texture soil. And this is made by wooden plow which increases the infiltration opportunity time. So dead furrow में क्या होता है? हम 6 to 8 rows का crop के बाद एक furrow लेते हैं, एक furrow that increases the opportunity time. infiltration opportunity time के बारे में हम प्रीवियस जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे. तो infiltration opportunity time इंक्रीज करने के लिए हम डेड फरो करते हैं. Then compartmental bonding, that is recommended for black soil with slope 0.5 to 1%. कौन सी क्रॉप में compartmental bonding किया जाता है? जनरली maize, sunflower, sorghum. These crops can be more suitably grown in compartmental bonding. Next question. Which among the following is not a component of water harvesting system? Which among the following is not a component of water harvesting system? इनमें से कौन सी एक कंपोनेंट नहीं है ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम? ऑप्शन आर कैचमेंट एरिया, स्टोरेज फैसिलिटी, कमांड एरिया. सो हम लोग वाटर सेट क्लास में डिस्कस किए थे. अगर आपने वाटर सेट को नहीं देखे हो तो फिर वाटर सेट का एक सेपरेट लेक्चर अपलोडेड है हमारे चैनल पे, तो आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो. सो एक वाटर सेट या फिर कोई भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है, वहां पे तीन कंपोनेंट बेसिकली रहता है. बेसिकली तीन कंपोनेंट रहता है. एक है जहां पे जिस एरिया से हम वाटर कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? कैचमेंट एरिया. कैचमेंट एरिया बोला जाता है उसको. कैचमेंट एरिया मतलब वहां पे रेन वाटर जो है कैच होता है, राइट, गैदर होता है. देन कैचमेंट एरिया से हम फनल करके एक जगह पे उसको स्टोर करते हैं जिसको बोला जाता है बेसिन या फिर फार्म पॉन्ड, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, राइट. देन जहां पे हम उसी वाटर को सप्लाई करते हैं यानी जहां पे उस वाटर को यूज करते हैं, दैट इज नोन एज कमांड एरिया. ओके, दैट इज नोन एज कमांड एरिया. दिस इज नोन एज कमांड एरिया. So these three are the major component of a water harvesting system. So the right answer here will be none. Okay, यहाँ पे ये जो तीनों है, these are component of water harvesting system. Next question. The size of water harvesting pond for 1 hectare area which can collect 30 to 40% runoff should be. जो फार्म पॉन्ड हम कंस्ट्रक्ट करेंगे that should be of कितना साइज जो कि 1 हेक्टर एरिया से वाटर कलेक्ट कर सकता है एंड द एफिशिएंसी वुड बी 30 to 40%. ओके, सारे वाटर तो हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, राइट. सारे वाटर स्टोर यानी कुछ इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, कुछ रन ऑफ में लॉस हो जाएगा, राइट. सो कुछ वाटर जो कि 30 to 40% ऑफ रन ऑफ वाटर हम कलेक्ट करने के लिए 1 हेक्टर एरिया से कितना पॉन्ड का साइज होना चाहिए? सो द राइट आंसर इज 250 to 300 स्क्वायर मीटर. ओके, जो फार्म पॉन्ड हम बनाएंगे उसका साइज 250 to 300 स्क्वायर मीटर होना चाहिए टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम 1 हेक्टर एरिया एंड द एफिशिएंसी ऑफ 30 to 40%. नेक्स्ट क्वेश्चन. कलेक्शन ऑफ रन ऑफ वाटर into micro and macro reservoir and recycling the stored water for irrigation is called. Collection of runoff water into micro and macro reservoir and recycling the stored water for irrigation, that is known as water harvesting. Okay, the water harvesting term defined this collection of runoff water into micro and macro reservoir and recycling the stored water for irrigation. क्या होता है water harvesting? That is, we are collecting the runoff water in micro and macro reservoir and we are using that runoff water as irrigation purpose. Next question. The optimum catchment to command area ratio for water harvesting for irrigation crops should be. Optimum catchment to command area
ये दोनों टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इसका रेशियो कितना होना चाहिए ऑप्टिमम फॉर वाटर हार्वेस्टिंग फॉर इरिगेशन पर्पज, ओके। वाटर हार्वेस्ट करके इरिगेशन पर्पज के लिए यूज करने के लिए कैचमेंट टू कमांड एरिया जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए ऑप्टिमम। द राइट आंसर इज 1:10, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए फार्म पॉन्ड हैविंग कांस्टेंट वॉल्यूम इवापोरेशन लॉस विल बी हायर फॉर ए फार्म पॉन्ड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फॉर ए फार्म पॉन्ड हैविंग कांस्टेंट वॉल्यूम इवापोरेशन लॉस विल बी हायर फॉर, ओके। सपोज फार्म पॉन्ड ए एंड फार्म पॉन्ड बी हम ले रहे हैं, राइट। दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड इसमें से कहां पे इवापोरेशन लॉस विल बी हायर, जहां पे फार्म पॉन्ड शैलो है। सपोज ये एक फार्म पॉन्ड है जहां पे फार्म पॉन्ड का जो डेप्थ है 5 मीटर है एंड दिस इज द फार्म पॉन्ड वेयर फार्म पॉन्ड का डेप्थ है 1 मीटर, ओके। तो कहां पे इवापोरेशन लॉस विल बी हायर? द राइट आंसर विल बी जहां पे डेप्थ कम है, राइट। शैलो पॉन्ड में इवापोरेशन लॉस विल बी हायर। क्यों? क्योंकि शैलो पॉन्ड में उसका डेप्थ कम है, तो वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू डेप्थ। सो डेप्थ कम है यानी जो फार्म पॉन्ड का एरिया है वो ज्यादा होगा, राइट। एरिया ज्यादा होगा मतलब वो सन को ज्यादा एक्सपोज होगा, वो पॉन्ड ज्यादा एक्सपोज होने से उसका जो इवापोरेशन है वो ज्यादा लॉस होगा, इवापोरेशन लॉसेस ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम डीप कर रहे हैं फार्म पॉन्ड तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम है। वहां पे क्या प्रॉब्लम है, हमको जो इरिगेशन करने के लिए हमको पाइप लगा एनर्जी यूज करके उसको पंप आउट करना पड़ेगा पॉन्ड से, राइट। अगर शैलो रहता है पॉन्ड तो फिर हम जो चैनल है उसका, पॉन्ड का जो चैनल है, ड्रेन आउट चैनल है, तो उसके थ्रू हम वाटर को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा डीप हो रहा है, जो पॉन्ड हम बना रहे हैं अगर ज्यादा डीप कर रहे हैं तो फिर वहां पे पंप आउट करके हमको जो वाटर को निकालना पड़ेगा फॉर इरिगेशन पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फार्म पॉन्ड्स आर ऑफ डैश टाइप्स। मोस्ट ऑफ द फार्म पॉन्ड्स आर ऑफ डैश टाइप्स। ऑप्शंस आर ओनली एक्सकैवेटेड टाइप, ओनली एम्बांकमेंट टाइप, पार्शियली एक्सकैवेटेड एंड पार्शियली एम्बांकमेंट टाइप, नॉन। इसका मतलब क्या है? एक्सकैवेटेड टाइप यानी जहां पे हम एक पर्टिकुलर प्लेस से हम मिट्टी निकाल के गड्ढा बनाते हैं, वी आर कंस्ट्रक्टिंग द फार्म पॉन्ड, ओके, वो हो गया एक्सकैवेटेड टाइप। अनदर टाइप इज ओनली एम्बांकमेंट। जो होता है वहां पे क्या करते हैं, हम सीमेंट या फिर बोल्डर लगा के, मतलब कुछ इम्परवियस स्ट्रक्चर देके चारों तरफ हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं एंड वहां पे वाटर स्टोर होता है, दैट इज एम्बांकमेंट टाइप। देन पार्शियली एक्सकैवेटेड एंड पार्शियली एम्बांकमेंट टाइप, दिस इज द most of the farm pond are generally partially excavated and partially embankment type। क्या होता है, यहाँ पे हम एक्सकैवेशन करते हैं, उसी मिट्टी को हम लोग बॉन्ड में एज एन एम्बांकमेंट यूज करते हैं, राइट। सो मोस्ट ऑफ द फार्म पॉन्ड्स आर partially excavated and partially embankment type। नेक्स्ट क्वेश्चन, द component of farm pond intended for dispose of excess water or prevention of overtopping due to unexpected inflow is called। the component of farm pond intended for dispose of excess water or prevention of overtopping due to unexpected inflow is called। कौन सी स्ट्रक्चर है फार्म पॉन्ड में जो कि एक्सेस वाटर को डिस्पोज करता है और प्रिवेंट करता है फार्म पॉन्ड को फ्रॉम ब्रीचिंग और मे बी डैमेज ऑफ बॉन्ड या फिर ओवरफ्लो ऑफ द फार्म पॉन्ड। सो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पिलवे। स्पिलवे एक फार्म पॉन्ड में रहता है जो कि एक्सेस वाटर को रिमूव करता है, राइट। एम्बांकमेंट क्या होता है हम डिस्कस कर लिए, जो कि बॉन्ड जो होता है वही एम्बांकमेंट होता है फार्म पॉन्ड का। लाइनिंग क्या होता है, दिस इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डीप पर्कुलेशन और इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ए फार्म पॉन्ड इज कैलकुलेटेड यूजिंग। द कैपेसिटी ऑफ फार्म पॉन्ड इज कैलकुलेटेड यूजिंग ऑप्शंस आर ट्रापेजोइडल रूल, स्पिलमैन्स रूल, मैनिंग्स फॉर्मूला, both A and B। so the right answer here will be both A and B। both trapezoidal rule and Spearman's rule, they are being used to calculate the capacity of farm pond। मैनिंग्स फार्मूला यूज होता है ड्रेनेज केस में, मैनिंग फार्मूला यूज होता है ड्रेनेज कैलकुलेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, covered underground tank generally constructed of machinery or concrete for collection and storage of surface runoff and rainwater harvesting for use as drinking purpose is called। what are the options? pond, nadi, khadin, tanka। the right answer is tanka। और इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है सिस्टर्ने, ओके। ये जितने भी, सपोज आप कोई भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें
तो मैक्सिमम स्ट्रक्चर जो है राजस्थान में यूज होता है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में रेनफॉल बहुत कम होता है, तो वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग इज ए फ्रूटफुल एक्टिविटी। सो जहां पे ड्राई रीजन जनरली रहता है वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग इज अ फ्रूटफुल टेक्निक। पॉन्ड के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। नदी क्या होता है? नदी, नाडी या नदी, जो भी आप प्रोनाउंस कीजिए। नदीज आर स्मॉल एक्सकैवेटेड और एम्बैंकमेंट विलेज पॉन्ड harnessing the major precipitation to mitigate the scarcity of drinking water in the Indian desert. Okay, desert area में ये generally embankment बना के villages में रहता है, right? Then खदिन क्या होता है? खदिन generally combines two adjoining physiographic land units. The runoff is stored in the lower valley floor enclosed by an earthen bond, and any surplus passes through a spillway. The water arrested stands in the khadin. Throughout the monsoon period, it may disappear below the soil by the first week of November, leaving the surface moist. Okay, so these are different types of structure. Generally, they are you can find them in Rajasthan. Okay, different district of Rajasthan. Next question: Which among the following is not a water conservation system? इनमें से कौन सी एक water conservation system नहीं है? खदिन, scoop, percolation tank, aquifer. The right answer is aquifer. Aquifer is not a water conservation system. Aquifer क्या होता है? जहाँ पे वाटर लेवल जो है सरफेस में रहता है, तो वहाँ पे कैपिलरी फोर्स इतना हाई होता है कि वहाँ पे जो है वाटर वो डायरेक्टली, मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, दे कम आउट नेचुरली. सो दैट इज नोन एज, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्विफर. खदिन हम लोग डिस्कस किए क्या है. स्कूप एक जनरली एक गड्ढा है जो कि इनफील्ड, इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए स्कूप बनाया जाता है, इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन. पर्कुलेशन टैंक जनरली जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए पर्कुलेशन टैंक बनाया जाता है, राइट. वहां पे हम इनफिल्ट्रेशन को परमिट करते हैं पर्कुलेशन टैंक में. देन स्कूप में भी हम रन ऑफ को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं. इनफिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम भी ज़्यादा बढ़ाते हैं हम स्कूप के द्वारा. खदिन जो है यहाँ पे क्या करते हैं, हम रेन वाटर स्टोर करते हैं. नेक्स्ट, which among the following chemical is used for inducing runoff? ओके, कुछ केमिकल यूज होता है जो कि रन ऑफ इंड्यूसमेंट के लिए यूज होता है. सो क्यों यूज किया जाता है रन ऑफ इंड्यूसमेंट के लिए? क्योंकि हमको जो भी कैचमेंट एरिया है वहां से हम बेसिन तक, जहां पे हम वाटर को स्टोर करते हैं, वहां पे हम इफेक्टिवली उस वाटर को लेना चाहते हैं. अगर हम इंड्यूसमेंट, रन ऑफ इंड्यूसमेंट यूज नहीं करेंगे तो फिर वो वाटर इनफिल्ट्रेट होके कैचमेंट में ही डिपॉजिट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा सॉइल मॉइस्चर में. ज़्यादा जो रेनफॉल है हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, इन हमारा जो पॉन्ड है वहां पे स्टोर नहीं कर पाएंगे, या फिर जो भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वहां पे स्टोर नहीं कर पाएंगे. तो वहां पे डिफरेंट केमिकल यूज करते हैं टू इंड्यूस दैट रन ऑफ. सो सम केमिकल्स लाइक sodium salt of silicon, and then latex, wax, asphalt, these are certain chemicals we generally use. So here the answer will be sodium salt of silicon. Gypsum, basic slag, these are used for amelioration of problem soil. Gypsum generally used for amelioration of sodic soil, and basic slag used for amelioration of acidic soil, acid soil, right? So sodium salt of silicon is generally used for inducing runoff. Next question: Most economical lining material used in farm pond to check percolation loss. लाइनिंग मटेरियल हम क्यों यूज करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमको अगर इनफिल्ट्रेशन को प्रिवेंट करना है, इनफिल्ट्रेशन यानी पॉन्ड में जो हम वाटर स्टोर करते हैं, राइट, उसको हम प्रिवेंट करते हैं टू इनफिल्ट्रेट डाउनवर्ड, बिकॉज हमको ज़्यादा देर तक पॉन्ड में वाटर स्टोर करना है टू यूज देम एज सप्लीमेंटल इरिगेशन. तो हम डिफरेंट लाइनिंग मटेरियल यूज करते हैं. पॉन्ड के नीचे हम डिफरेंट लाइनिंग मटेरियल यूज करते हैं. लाइनिंग मटेरियल यानी that may be clay, that may be any hydrophobic compound, that may be any cement lining. सीमेंट लाइनिंग भी हम करते हैं जो कि 100% इफेक्टिव है, लेकिन ये क्या है, कॉस्टली होता है सीमेंट लाइनिंग. लेकिन सबसे जो इकोनॉमिक लाइनिंग मटेरियल है दैट इज क्ले लाइनिंग. ओके, क्ले इजीली सस्ते में मिल जाता है, तो क्ले लाइनिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव लाइनिंग मटेरियल, मोस्ट इकोनॉमिक लाइनिंग मटेरियल, एंड दीज आर गुड फॉर यूजिंग इन लार्ज पॉन्ड्स. सो हमको कितना थिकनेस रखना चाहिए क्ले लाइनिंग का? द मिनिमम थिकनेस विल बी, अगर हमारा जो पॉन्ड है वो 3 मीटर डेप्थ का रहता है, 3 मीटर डेप्थ का पॉन्ड रहता है, तो हमारा मिनिमम थिकनेस ऑफ क्ले लाइनिंग शुड बी 30 सेंटीमीटर. और उससे अगर ज़्यादा, मतलब 3 मीटर से अगर 30 सेंटीमीटर ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमको 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्ले लाइनिंग रखना पड़ेगा. इसको याद रख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन:
फार्म पॉन्ड स्ट्रक्चर व्हिच हैज हाई वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, इनमें से कौन सी फार्म पॉन्ड स्ट्रक्चर व्हिच हैज हाई स्टोरेज कैपेसिटी? ऑप्शंस आर स्क्वायर, ट्रापेजोइडल, सर्कुलर, डजंट डिपेंड ऑन शेप. तो द राइट आंसर विल बी सर्कुलर. सर्कुलर जो पॉन्ड शेप होता है उसमें हाई वाटर स्टोरेज कैपेसिटी रहता है, राइट? So circular ponds have the geometrical advantage that they have higher storage capacity with least circumferential length for a given surface area and side pores. But these circular ponds have certain disadvantage as substantial area is lost for agricultural operations. Next question. Which among the following practice is done to prevent infiltration loss with prolonged submergence in rice crop? Okay. राइस में इन्फिल्ट्रेशन लॉस प्रिवेंट करने के लिए या फिर ज़्यादा देर तक सबमर्जेंस रखने के लिए कौन सी प्रैक्टिस किया जाता है? ऑप्शन आर बेउसनिंग, पारबॉइलिंग, सबसॉइलिंग, पॉडलिंग. द राइट आंसर इज पॉडलिंग. पॉडलिंग में क्या करते हैं हम? विथ स्टैंडिंग वाटर, फील्ड है वहाँ पे स्टैंडिंग वाटर रख के हम उसको प्लाविंग करते हैं, राइट? तो प्लाविंग करने के टाइम अगर स्टैंडिंग वाटर रहा तो जो हमारा सॉइल पार्टिकल्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. देयर एग्रीगेशन will broken. Okay, एग्रीगेशन ब्रेक होके क्या होता है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल जो है लेयर में सेटल हो जाते हैं. लेयर में सेटल होने की वजह से पोर स्पेस वो ब्लॉक हो जाते हैं, राइट? तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है इन्फिल्ट्रेशन एंड डीप पर्कुलेशन ऑफ दैट स्टैंडिंग वाटर. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज पडलिंग. बेउसनिंग क्या होता है? बेउसनिंग में हम वीड्स को कंट्रोल करते हैं. देन प्लांट स्टैंड जो पॉपुलेशन है उसका स्पेसिंग है उसको हम मैनेज करते हैं. पारबॉइलिंग में क्या होता है? पारबॉइलिंग में हम, दिस इज अ हाइड्रोथर्मल प्रोसेस एंड हम क्या करते हैं? लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस में राइस को पानी में डुबा के, तो उसमें क्या होता है? जो वाइटामिन्स है इन हॉल ऑफ राइस, लेमान पालिया जो कि हॉल होता है राइस ग्रेन के ऊपर जो हॉल रहता है उसमें से न्यूट्रिएंट रिलीज होके वो राइस ग्रेन में सोक हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है. तो राइस का न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड उसका सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाता है. देन मिलिंग के टाइम उसका जो लॉसेस होता है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं. सबसॉइलिंग क्या होता है? सबसॉइलिंग में हम सब सरफेस हार्डपैन जो है उसको ब्रेक करते हैं. दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज सबसॉइलिंग. सो हियर द राइट आंसर विल बी पॉडलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्शन ऑफ द कैचमेंट एरिया ऑफ फॉर वाटर हार्वेस्टिंग डिपेंड्स ऑन. सिलेक्शन ऑफ कैचमेंट एरिया फॉर वाटर हार्वेस्टिंग डिपेंड्स ऑन. ऑप्शंस आर रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, टोपोग्राफी, लैंड यूज, ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. सो अगर हम कैचमेंट एरिया सिलेक्ट करते हैं, कोई भी एरिया को एज ए कैचमेंट एरिया सिलेक्ट करते हैं, तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए हमारा सिलेक्शन का? रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स में रेनफॉल इंटेंसिटी कितना हो रहा है, रेनफॉल ड्यूरेशन कितना देर तक रेनफॉल हो रहा है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, हाउ द रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट एरिया. देन टोपोग्राफी में डिग्री एंड लेंथ ऑफ द स्लोप, साइज एंड शेप ऑफ द कैचमेंट, एक्सटेंट ऑफ डिप्रेशन ऑन द कैचमेंट, दैट शुड बी कंसिडर्ड. देन अगेन सॉइल फैक्टर एक रहता है, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, इन्फिल्ट्रेशन रेट, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, इरोडेबिलिटी, दिस फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड. देन लैंड यूज में इंटेंसिटी ऑफ कल्टिवेशन, क्रॉप, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स adopted in that particular locality, cultural practices, these are certain parameters we should focus on. Next question. Which among the following is a disadvantage or limitation of rainwater harvesting? इनमें से कौन सी एक disadvantage और limitation of rainwater harvesting है? Options are require regular maintenance, may attract mosquito or waterborne diseases if not installed correctly, limited rainfall limits the harvesting, all of the above. So the right answer will be all of the above. रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को मेंटेनेंस का जरूरत है, रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए. कितना वाटर आ रहा है, कितना वाटर हम सप्लाई करेंगे, कहाँ पे सप्लाई करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, दिस थिंग should be considered. Then may attract mosquito and waterborne diseases if not installed correctly. अगर हम ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं या फिर अगर हम ठीक से इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं तो फिर वाटरबॉर्न डिजीजेस, डिफरेंट मॉस्क्यूटो कहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं? मॉस्क्यूटो जो है वो वाटर में ही ब्रीडिंग करते हैं. वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वहाँ पे जो वाटर है उसको हम अगर क्लीन नहीं रखते हैं, उसको अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं तो वहाँ पे वाटरबॉर्न डिजीजेस होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. देन लिमिटेड रेनफॉल लिमिट्स द हार्वेस्टिंग. अगर उस प्लेस में, कोई भी प्लेस में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर वहाँ पे रेनफॉल लिमिटेड है तो फिर जो हार्वेस्टिंग हमारा उसका भी एफिशिएंसी लिमिटेड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. Which among the following is an advantage of rain water harvesting? इसमें से कौन सी एडवांटेज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का? ऑप्शंस आर इंक्रीज वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन,
improved quality and quantity of groundwater, excellent source of irrigation, all of the above. The right answer is all of the above. So रेन वाटर हार्वेस्टिंग होने से हम बहुत सारा एनर्जी एंड वाटर सेव कर पाते हैं, जो कि हम ग्राउंड वाटर अगर टैप करने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत सारा एनर्जी यूज होता है हमारा पंपिंग में. देन इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर. ओके, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा हम उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज उसको यूज कर सकते हैं. Then excellent source of irrigation. Rainwater is excellent source of irrigation, that is salt free generally, so we can use it as irrigation purpose. So these are certain advantages of rainwater harvesting. So students, अगर आपको लेक्चर हमारा अच्छा लगता है तो फिर आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो. अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो, ताकि आपको इसका PDF भी मिल जाएगा एंड डिफरेंट क्वेश्चन आंसर वहाँ पे डिस्कशन होता है, आप उसका भी बेनिफिट ले पाओगे. So if you have any query regarding this topic or any topic, if you feel any doubts, then you just ask in the comment section, and you can post it also in our Telegram group. See you in the next lecture. Till then, bye bye, have a great day.